एक बार आखो सतनाम श्री। सारिया भैणां आखो सतनाम श्री, सतनाम श्री। साध संगत सब तो वड्डा पाप पता किहड़ा है? भैणों सुन लियो, सब तो वड्डा पाप, बाहर कोई पाप गलती हो जाए तो गुरु बख्शणहार है। आपां सारे बंदे गलतियां करते, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता मैं कदे कोई गलती नहीं की। हर बंदे तो कोई ना कोई गलती हुंदी जिंदगी में, पर सारियां गलतियां भुल्लां औगण किहदे कोल बख्शाए जा सकते? गुरु दे कोल, क्योंकि गुरु बख्शणहार है। इत्थे अरदास करी दी महाराज लिखे कतै न छुटिए, खिन खिन भूलणहार बख्शणहार बख्श लै नानक पार उतार। बाहर दियां कीतियां गलतियां गुरु दे दर उत्ते आके बख्श हो जाती, पर साध संगत कोई गुरुद्वारे आके गलती करे, गुरु दी हजूरी विच गुरु दे दर उत्ते गलती करे तो फिर वो कित्थे बख्शिया जा सकता? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह तो सिक्खां ने सवाल किया, कहते महाराज जी सब तो वड्डा अपराध किहड़ा है? महाराज सब तो वड्डी गलती किहड़ी है? तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते भाई गुरु की संगत विच बह के जिथे रब की कथा कीर्तन हो रहा होवे, जिथे परमात्मा के नाम का सत्संग हो रहा होवे, वो संगत विच बह के कोई संसारी गल्लां करे, वो सब तो वड्डी गलती है, सब तो वड्डा अपराध है कोई दुनियावी गल करे। इसलिए साध संगत संगत विच बह के आपां संसारी गल्लां नहीं करनी। जी मैं पंजाबी विच ही कहा, जिन्हां भैणां कोल छोटे बच्चे बाहर चले जाओ फिर कोई नुकसान करा लोगे। एक बार आखो सतनाम श्री, फिर आखो सतनाम श्री। सारी संगत प्यार नाल पढ़ो। थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो थिर कर थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन थिर कर। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, थिर कर वैसो हर जन थिर कर। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे सतगुर थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो। आखो सतनाम श्री। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कहे, कहते साध संगत जो बात चलावे, कह देसा सिंह जम चोटा खावे। कहते भाई सब तो वड्डा अपराध है साध संगत विच बह के बातां करनियां, भाव गल्लां करनी। कहते भाई देसा सिंह जी ओनू जमां दी मार तो कोई भी नहीं बचा सकता,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਵੇਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, 10-20 ਜਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਓ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਆਦਤ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਮਾੜੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਘੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਟੈਂਪ ਤੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਹੀ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਪੁੱਠਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ,
वो मत्था टेकन गुरुद्वारा दूखनिवारण साहब आया। जदों कथा करके असीं बाहर निकले ना, नाल एक बहुत प्यारे गुरमुख ज्ञानी जन, उस दिन उन्हां दी कथा सी, तो असीं दोवें जने बाहर आए। मैं अदब सत्कार वास्ते उन्हां कोल गया, तो नौजवान निशान साहब दे कोल खड़ा, तो हाथ जोड़ के कहना, बाबा जी मेरे भी कर्म बदल जाणगे। कहना मैं तो बहुत कर्मां दा मारिया होया। कहना मैं तो आत्म हत्या करन वास्ते उन्हें जेब विचों दवाई कढ के दिखाई जहर वाली, जिहड़ी कणक च आपां रखदा। वो कहना मैं तो जेब में टीका पाई फिरने, अज मैं जहर खा के मर ही जाने। तो असीं उहनूं बड़े हैरान जे होके कहे, तू क्यों मर जाने भाई, मसां जीवन मिले है, ये संघर्ष वास्ते है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू मैंटली प्रिपेयर किया है। जिंदगी विच दुखों तो हार ना जाई, तेरे जीवन में दोवें चीज़ां रब ने लिखियां ने। जे सुख बदले ने, जिंदगी में दुख आए ने, जां गुरु का नाम जप, दुख भी सदा नहीं रहणगे, दुख बदल जाते। साध संगत, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सानू निराश नहीं किया, आस्था में जीवन सिखाया, मैंटली प्रिपेयर किया। ये गल याद रखी भाई, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरे जाए मनुख, ये रब दे घरों लिखतां लिखियां ने। जे सुख नहीं रहे ते दुख भी नहीं रहणगे, जीवन में दोवें चीज़ां बदलदियां रहिंदियां। जिवें रात ते दिन बदलते ने, इदां सुख ते दुख बदलते हैं। उन्होंने कहा तू निराश क्यों हो गया? कहना जी मैं इन्ना पढ़िया लिखिया नौकरी नहीं मिली, मैं इन्ना पढ़िया लिखिया कोई कम सूत नहीं आता, जिहड़े कम नूं हथ पाईदा कहना कम ही नहीं सिरे चढ़दा। तां कहना मैं किसी पंडित कोलों टेवा बनवा लिया, क्योंकि दुखी बंदा भजदा। फिर जदों बहुत दुखी होवे, वो आले दुआले कोई ना कोई सहारा लभदा। कहना मैं पंडित कोल चला गया, उन्हें मेरा टेवा तैयार किया ते कहना भाई साहब, वो पंडित ने कहा तेरे भागां विच कोई नौकरी कोई बाहर दा सुख नहीं, तेरियां तां रेखावां कर्म बहुत माड़े ने, तेरे जीवन विच 40 साल इदां संकट रहणगे। कहना मैं 40 साल कित्थे दुख भोगांगा? तां कहना मैं निराश हो गया, हुण तां मैं मर ही जाना। तां साध संगत, वो मेरे नाल बजुर्ग ज्ञानी जी जड़े, उन्होंने अगों उन्होंने मोढे ते हथ रख के गया, कहते तैनू पता है तू किहड़े गुरु दे कोलों उठ के आया? तैनू पता है अंदर किस गुरु दा प्रकाश है? जिस गुरु दे चरनां विच मस्तक रख के भावना नाल जाप करिए, ये गुरु ओ इन्नी वड्डी समर्था रखदा है, गुरु कर्म बदल दिंदा है। अरदास कर उस गुरु दे चरनां विच, जिहड़े गुरु नूं कहीदा बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार। ये गुरु तो मानसा तो देवते बना दिंदा है, तां तैनू मानस जन्म में सुख नहीं क्यों नहीं मिलेगा? कहंदे निराश ना हो, अरदास कर। वो कहना जी बहुत बार करवाई है, ते साध संगत ते कई बार गुरु की कृपा बख्शिश हुंदी। वो प्यार वाले कहते फिर सज्जना एक बचन मन, जेड़ा पंडित तेनू कहंदा रेखावां तेरियां गलत ने, जेड़ा जोशी कहंदा तेरे मस्तक ते हस्त रेखा गलत है, जेड़ा कहंदा तेरे भागां विच कोई सुख नहीं, जा गुरु दा बचन मन अमृत छक। अमृत छकण दी अज अरदास कर। कहंदा इस तों बाद वो ज्ञानी जी कहंदे फिर वेखांगे तेरे कर्म किवें नहीं बने। गुरु तो जन्म कर्म बदल दिंदा है। सतगुर के जन्म में गवन मटाया। वो कहना जी चलो मरण तो पहला अमृत छक के भी वेख लैने। वो बड़ी दृढ़ता नाल उहने कहना चलो जी जे इदां कहने इदां कर लैने। अरदास कीती मैं अमृत छकांगा जी जदों अमृत संचार अगले ऐतवार होया। उन्हें अरदास कीती ते साध संगत अजे अमृत छकिया नहीं सी। 7 दिन ओदे जीवन में लंघे। ऐतवार नूं अमृत संचार सी। अमृत छकण तो पहले ही वो बंदा शुक्रवार नूं आके कहना भाई साहब जी मैनू नौकरी की चिट्ठी आ गई है, मैं इंटरव्यू ते चले तो ज्ञानी जी कहते हुण अमृत छक के जाई, जा तैनू किसी नौकरी तो जवाब गुरु नहीं होण देगा। ये वो गुरु है जिहड़ा कर्म बदल दिंदा है। साध संगत ऐतवार उन्हें अमृत छके, सोमवार ओदी इंटरव्यू सी। अज भी बंदा नौकरी ते लग्या होया है ते एक बेनती समझो वो परत के 1-1.5 महीने बाद अमृत छक के रोज नितनेम करता रहा, हर रोज गुरुद्वारे आंदा रहा। ओनू फिर ज्ञानी जी ने कहा कहंदे ओ पंडित नूं मिल के आ, ओनू जाके अपना टेवा दिखाल
वो पंडित नूं कहे हुण मेरियां रेखावां मस्तक ते हस्त रेखावां पढ़ के दसो। ते साध संगत विश्वास वास्ते हो गया, ज्योतिषी ने ओदा मस्तक वेखे, ओदे हस्त दीयां रेखावां पढ़ियां। वो कहना भाई तेरे तां कर्म ही बदल गए, तेरे भागां विच जो कुछ अज तो 1 महीना पहला सी अज जो भागां विच नहीं, ये कर्म बदल गए ने। ये किवें होया? ते साध संगत वो नौजवान अखां भर के हथ विच श्री साहब पकड़ के कहंदा ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश हुई। साध संगत सतगुर के जन्म में गबन मिटाया। इत्थे कर्म बदलते ने, आपां अपने कर्म बिगाड़िए ना। शर्त इक्को ही है, पातशाह ने कहा स्थिर हो, स्टेबल हो, विश्वास रख, अपने गुरु नूं सिमरिया कर। एक पंक्ति पढ़ियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजूर कहते ने जे तेनू अत मुश्किल पैदा हो जाए, मैं कई बार दरबार साहब तो भी बेनती की, मुश्किल जिंदगी विच आउणी चाहिदी। माड़ियां मोटियां मुश्किलां नूं लैके गुरु दे कोल उलंबा नहीं देना चाहिए, गुरु नूं उलंबे नहीं देने चाहिए। जिंदगी विच मुश्किल आउंदी है क्योंकि मुश्किल बंदे नूं मजबूत करदी है। जिहनूं जीवन विच मुश्किल ना आवे वो जिंदगी दुनिया विच बंदा कमजोर रह जांदा। सिख कौम अज पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई है, इन्नी वड्डी ताकत। साध संगत आ तुसीं थोड़े दिन पहला वेखिया पंजाब विच 5-10 साल रौला पैंदा रहा, पंजाब दी जवानी नशिया ने खा ली, पंजाब नूं चिट्टे ने खा लिया, पंजाब विच 6वां दरिया नशिया दा बगन लग पिया। ये बड़ा प्रचार होया, इहदे विच साध संगत झूठ नहीं सी, नशा वगे वरते, लोकां विच नशे बेशक बड़े ने। पंजाब दी जवानी नूं नशा चिंबड़िया जरूर सी, पर एक गल विश्वास रखियो, वो नशा पंजाब दी जवानी नूं खत्म नहीं कर सकिया। अज भी गुरु दी कृपा बख्शिश सदका पंजाब दे जवानां विच ओह ताकत फिर गुरु ने भर दित्ती। आ तुसीं थोड़े दिन पहलां वेखिआ 2-2 क्विंटल दे पत्थर नौजवानां ने चुक चुक के पुल तो परे मारे। ये नशे वालियां विच इन्नी ताकत नहीं हो सकती, ये गुरु दे अमृत दी शक्ति है। ये पंजाब गुरुआं ते पीरां दी धरती है, इत्थों दुनिया दा कोई नशा जवानी दी ताकत नूं खत्म नहीं कर सकता। इसलिए साध संगत विश्वास रखण दी लोड़। थोड़ियां बहुतियां मुश्किलां हर बंदे नूं आउंदियां ने। पातशाह ने कहा जिद्दण तैनूं लगे मुश्किल वड्डी हो गई है, तेरे वस दी गल नहीं रही, तेरी वाह पेश नहीं जाती, जा अपने गुरु अगे चित जोड़ के अरदास करी, गुरु दा आसरा लेके वेखियो मुश्किल ऐ हल हो जाएगी। जिवें साध संगत मक्खण विचों बाल सबूता कट लईदा ओदा बिगड़दा कुछ नहीं, ऐदां गुरु तैनूं घणे संघणे दुखां विचों वे खबर कट के रख ले। बस गुरु ते विश्वास चाहिए। पातशाह ने लिख के दिता है जाको मुश्किल अत बने, अत मुश्किल जिहदा हल ही ना होवे कोई, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लगू होए दुश्मन साक पी भज खले। तेरे सगे भी भज, उदों कौन सहाई है? कहंदे सबो भजे आसरा चुके सब असरा, चिता वे उस पार ब्रह्म तां लगे ना तत्ती वाओ। तेनों गुरु चित्ते आ जाए तत्ती हवा भी नहीं लगेगी, पर गुरु दी एक शर्त है, विश्वास करके बह जाए, गुरु ते भरोसा करके बह जाए। ये ना होवे अरदास इत्थे भी करे ते वीरवार नूं किसे बाबे दी समाध उत्ते भी दीवा करदा, अरदास इत्थे भी कीती होवे, किसे पंडित कोलों गंढ मूल मंगलीक टेवे भी घलाउंदा फिरे, अपने गुरु ते भरोसा रख के बह जाए। फिर गुरु ने लिख के दिता है सब कारज गुरु सवारेगा, वड्डे वड्डे शाह बादशाह तेरे अगे झुक जाणगे। साध संगत ये गुरु ते विश्वास रखण दी लोड़ है। एक बार सारी संगत चित जोड़ के कहो, जिन्हां दी याद मना रहे हो वो संत रब नूं पता कदों प्रवान हुंदे, जदों पूरी दुनिया एक पासे होवे पर साधु दा विश्वास अपने रब उत्ते हुंदा है। कुल दुनिया दे उल्ट साधु दा विश्वास एक रब उत्ते हुंदा है, ओनू बंदियां दा आसरा नहीं, ओनू रब दा आसरा हुंदा है। आपां नू आसरा पता काहदा है? आपां दुनियावी बंदे, किसे नू पुत्तां धीआं दा आसरा है, किसे नू जमीन जायदाद दा आसरा है, किसे नू अपने पैसे दा आसरा है,
पर साध संगत संत नूं आसरा सिर्फ नाम दे। ताइयों पातशाह ने बचन कहे, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। संत रहत सुनो मेरे भाई, उहां की महिमा कथन न जाई। संत दी महिमा कथन तो बाहर है, क्यों? ओनू इक्को चीज ते आसरा अपने रब उत्ते, ओनू बंदियां ते नहीं, ओनू जायदाद ते नहीं, ओनू पैसे धन दौलत उत्ते नहीं। संत नू आसरा एक ते रहिंदा है, रब नू फिर 24 घंटे संत दे नाल खड़ना पैंदा है। ताइयों पातशाह ने सानू कहा है, ऐ सेवक, ऐ जन, ऐ गुरु दे सिख, तू मन करके स्थिर हो जाई, एक अगे अरदास करके ओदे ते छड़ दई, फिर वेख तेरा सतगुरु तेरे कारज किवें सवारदा है। एक बार गुरु ते विश्वास रख के कहो, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, थिर कर वैसो गज के थिर कर। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे, सतगुर गुरु ते विश्वास रख के तुरीए। जिन्हों महापुरुषों की जहाज बैठो, इत्थे नाल ही स्थान है श्रीमान संत बाबा राम लाल जी, ये बाबा लाल दास जी ने, मैनू पता है साध संगत, ये साधु बाबा गुलाब दास जी उन्होंने संप्रदाय इस पूरे बार्डर के इलाके में पाकिस्तान बनने तो पहला उन्होंने सिक्खी का बड़ा प्रचार किया। ये साधु सिक्खी का प्रचार करते रहे, गुरबाणी की संथ्या देंदे रहे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी की उपदेश नाल लोकां नूं जोड़दे रहे। जदों कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे बिल्कुल अंदर गहराई तक जुड़ जांदा है, एक चेते रखियो, बाणी कल्ले अखर नहीं, बाणी कोई भाषा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कल्ला ज्ञान नहीं। जिद्दन गुरु की बाणी नूं कोई मानण लग पैंदा है, बाणी उहदे नाल वरतण लग पैंदी, क्योंकि बाणी कल्ला ज्ञान थोड़ी है। बाणी तां वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई, बाणी रब है। जिद्दन कोई चित जोड़ के उन्होंने जपदा, बाणी फिर नाल वरतण लग पैंदी। ताइयों लिख के गुरु ने दिता है, रोज तो कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते। दुनिया का साथ भंग रूप विच है। अज पुत्र नाल ने, कल नूं हो सकदा नाल ना होण। अज संसार दे लोग मगर ने, कल नूं हो सकदा मुर्दाबाद कहण लग पैण। अज पैसा कोल है, कल नूं हो सकदा पैसा ना होवे। 20 सालां विच दुनिया दे नक्शे बदलण लग पैंदे ने। 20 साल पहलां आपां की सी, अज की है, अज तो 20 सालां बाद भी हालात ये नहीं रहने। इसलिए साध संगत, दुनिया दी चीज़ां सिचुएशन चेंज होती रहती है, पर रब जिहड़ा वो 24 घंटे हर वक्त अपंग रूप विच अपने सेवक दे नाल रहिंदा है। जदों कोई जपण वाला रब उत्ते मान रख के काम करदा है, रब नूं वरतना पैंदा है। इत्थों तक पातशाह ने लिख के दिता है, मेरी बंदी भगत छड़ावे। रब दा लिखिया भी भगत बदल दिंदे, जो रब ने लिखिया वो रब दा लिखिया भगत बदल दिंदे ने। ते जिद्दन भगत रब दे प्यारे कोई वचन कह देण, रब दे वस दी गल नहीं रहिंदी, उत्थे रब नूं अपना फैसला बदलना पैंदा। इतिहास विच बड़ी प्यारी घटना घटी। पंजवें पातशाह प्रतख रब ने, जिन्हां दी वडियाई वे साध संगत तुसीं पंक्ति पढ़दे हो, तत् विचार जह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। आ सामने लिखा हुआ, जपियो जन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न। गुरु अर्जन देव महाराज आप रब ने। धन गुरु अर्जन देव नाम किसी शरीर व्यक्ति का नहीं, गुरु अर्जन देव नाम प्रतख रब दे। ते भट्ट कहंदे दुनिया दे लोको, अज तक रब दे नाम राम, अल्लाह, गोविंद, बीठल, गोपाल, धरनी, धर नारायण सी।
अज रब दा एक नाम होर हो गया है। रब दा नाम हुण धन गुरु अर्जन देव पै गया है। ओ जे कोई चित जोड़ के कवे धन गुरु अर्जन देव, वो भी बंदा जन्म मरण तो मुक्त है। ताइयों तुसीं आ पंक्ति लिखी है ना, जपियो जन अर्जन देव गुरु। जे किसी ने धन गुरु अर्जन देव जप लिया, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, वो जन्म मरण विच नहीं पैंदा। क्यों? गुरु अर्जन देव नाम किसी शरीर व्यक्ति दा नहीं, गुरु अर्जन देव नाम हुण रब दा हो गया। साध संगत गुरु अर्जन देव महाराज नूं किसी सिख ने बुलाया, ओदा नाम इतिहास विच आया भाई बुद्धू शाह। उन्हें कहा महाराज कारोबार शुरू किया है, तुहाडी किरपा नाल तुसीं अरदास करो, चरण पाओ। पातशाह संगत समेत आ गए। उन्हें साध संगत नवा पट्ठा लाया, आवे लाए सन इट्टां पकाउण वाले। उदों जदों कोई पहला पहला पक्की इट दा हवा लाए तां दुनिया वेखण आउंदी सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज आप उहदे कारज वास्ते अरदास करन संगत लेके आए। बहुत संगत जुड़ गई, गुरु दे दर्शनां वास्ते संगत जुड़ी। उस संगत विच साध संगत एक फकीर आ गया, उहदा नाम इतिहास विच आया भाई कमलिया। इहदी उम्र बहुत वड्डी होई। ये धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे वेले दा साधु है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो ये साधु चलिया आ रहा है। गुरु अर्जन देव महाराज तक के सिक्खी विच रहा है। ते जदों वो बाहर आके बह गया ना संगत, मस्ताना सी ते मस्ताना कहंदा है प्रशादा कदों वरताउणा भाई, भुख लगी है, इन्नी संगत इकट्ठी कीती है, भोजन कदों देना है? तो वो किसी ने कहा भोजन मिलने गुरु अर्जन देव महाराज ने पहला अरदास करनी है, फिर भोजन नूं भोग लगना, फिर संगत विच वरताउणा। पहला गुरु अर्जन देव महाराज ने अरदास करनी है, फिर भोजन नूं भोग लगना, फिर संगत विच वरताउणा। उन्नी देर भाई कमलिए इत्थे प्रशादा नहीं वरतना। कहंदे किन्नी देर वो बाहर बैठा रहा, तो फिर उन्हें किसी ने पूछया प्रशादा भोजन कदों मिलना? कहंदे जे भोग नहीं लगा। ते फिर वो कमलिया पुछदा ये कादे वास्ते प्रशादा बनाया? तन दस्सण वालियां कहा गुरु अर्जन देव महाराज आए ने भी इस बुद्धू शाह ने आवे लाए ने, बुद्धू पक्कियां इट्टां दा भट्ठा ला रहा है, इस वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज अग देण वास्ते आए ने। अज पहला भट्ठे दा आवा तैयार होना। ते कहंदे ओ कमलिया उठ के तुर गया, मोढे ते धर के कमली इन्नी गल कहंदा जे साधुआं नूं अजे भोजन नहीं, ते ओ अपने प्यार विच बोल के चला गया। कहंदा जा फिर बुद्धू दा आवा कच्चे दा कच्चा, बुद्धू दा आवा कच्चा रहेगा। इस तरह बोलदा तुर गया। गुरु अर्जन देव महाराज ने अरदास की होवे। साध संगत जदों 21 दिनों बाद आवा पटिया, सचमुच बुद्धू दे आवे दियां इट्टां कच्चियां निकलियां। रौला पै गया, परतख रब ने अरदास की है, फिर आवा क्यों ना पक्के? गुरु अर्जन देव महाराज तां रब ने। ओ जे गुरु अर्जन देव महाराज दी अरदास नहीं पूरी हुई, इट्टां पक्कियां नहीं कच्चियां निकलियां ने, फिर एक किवें भाणा वरत गया। सिखां जाके पुछया, बुद्धू भी पहुंच गया, कहंदा महाराज आवा तां कच्चा निकल गया। सिख कहंदे महाराज तुसीं तां रब हो, तुहाडी अरदास क्यों नहीं पूरी हुई? श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहंदे ठीक है भाई, पर साडे तो उपर भी किसी दा हुक्म चलदा। कहंदे महाराज तुहाडे तो उपर किहदा? कहंदे रब दे प्यारियां दा हुक्म रब तो उपर चल जांदा है। असीं इट्टां पक्कियां करन दी अरदास कीती, कोई रब दा प्यारा कह गया कच्चा रहेगा, हुण कच्चे दा कच्चा ही रह गया। साडे उपर रब दे उपर भी रब दे प्यारियां दा हुक्म चलदा है। मेरी बंदी भगत छड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोकों गए बंद है, तौफन मोह पे जवाब ना होए। ते फिर वो बुद्धू हाथ जोड़ कहंदा महाराज एक पासे रब, एक पासे रब दे प्यारे, मैं ते विच गरीब मारिया गया। महाराज इन्नी मेहनत, पहली बार भट्ठा लाया इट्टां कच्चियां। गुरु अर्जन देव महाराज मुस्कुरा के बोले, कहंदे ओ बुद्धू तेनू घाटा नहीं पैगा, जा बुद्धू शाह ओ तेरियां इट्टां कच्चियां भी पक्कियां दे भाव विकण गियां। अध पक्कियां इट्टां, इन्नी बरसात पई, साध संगत वड्डे वड्डे अमीर लोग ओदियां अध कच्चियां इट्टां भी उदों पक्कियां दे भाव विक गईयां। कहण तो भाव ये गुरु दे दर दी वडियाई, इत्थे रब दे उपर साधुआं दा हुक्म चल जांदा। इत्थे बिल्कुल बार्डर उत्ते एक पिंड है, ओनू तहसील
पट्टी पैंदी है ते जिला हुण तरन ताਰਨ विच पिंड है। वो पिंड का नाम है ठट्ठी जमाल, बिल्कुल बार्डर के कंढे पिंड है। उत्थे महापुरुषों का याद तप स्थान है, खूह बनया होया है। साध संगत तो छोटा जिहा नगर, जदों महापुरुषों नगर में गए ना, उत्थे नगर तो बार बार जाके उन्होंने खूह पट्टिया होया सी, उहदे विच बहिंदे सन। ते कहने उन्हां दिनां विच ना प्लेग फैल गई। पाकिस्तान के बार्डर के कई पिंड ते इधर फिरोजपुर तक कई पिंड प्लेग की बीमारी के घेरे विच आ गए। जिवें हुण करोना जिहड़ा है वो जिहड़े इलाके विच फैलिया, बहुत फैलिया। तां साध संगत तो प्लेग दे नाल नित पिंड विच मौतां होण लग पईआं, कई बार दो दो मौतां होणीआं। तां वो ठंड बरसात दे विच बालण दा प्रबंध ना होना। एक दिन पिंड दी पंचायत लंबड़दार इकट्ठे होके आ गए। उन्हां आके महापुरुषां नूं कहा, बाबा जी पिंड विच नित मौत होण लग पई है, प्लेग दी बीमारी फैल गई है, कई बार दो दो मौतां हुंदियां ने, हुण तां संस्कार करन लई बालण भी नहीं। महापुरुषो तुसीं कोई किरपा करो। साधु वेखो साध संगत किवें संसार दे अंदर दुखां दा मूंह मोड़ दिंदा है। ये सिर्फ साधु दे हथ है। अज भी दुनिया के डॉक्टर फेल हो गए। जिहड़ियां कंट्रियां मैडिकल साइंस में सब तो अगे सी, अमेरिका वर्गियां कंट्रियां दे हथ खड़े हो गए, कोरोना वस नहीं होई। ते तुसीं रब दा शुक्र करो, आपां नूं तत्ती वाह नहीं रब ने लगन दी। मैं कई बार दरबार साहब तो भी एक कथा हुण सुनाई। एक सरदार बड़ा अमीर है, उहदी फैक्ट्री चलदी है। वो महापुरुषों कोल जाके कहना, बाबा जी बहुत घाटा पै गया। कहते काहदा घाटा पै गया? कहना जी फैक्ट्री चलती है, 500 तो वध मुलाजम है मेरे को। महापुरुषों कोरोना करके सब कुछ बंद हो गया। ते कहंदा 500 बंदे नूं 4 महीने कोलों तनख्वाह दी है, हुण विचों बंदे कढणे पै गए। 500 वर्कर मेरे को काम करदा है, पल्लियों तनख्वाह दी है, करोड़ां दा घाटा पै गया। ते वो महापुरुष मिठा जिहा मुस्कुरा के कहंदे सरदार जी कोई घाटा घुटा नहीं पिया, ये लखां करोड़ां दे घाटे काहदे गिणदे हो? ये तां 6 महीने साल 2 सालां विच पैसे पूरे हो जाणगे। और रब दा शुकराना करो, तुहाडी जान बख्श दित्ती रब ने। रब दा शुक्र करो। जो कुछ इटली अमेरिका विच होया, उन्हां देशां में साध संगत 60 सेकंड लगदे, 1 मिनट। लाश नूं इलैक्ट्रिसिटी सिस्टम है, तुहानूं पता है, उत्थे फ्यूनल कहंदे ने। वो इदां ही लाश विच बाड़दे ने, बटन दब दिंदे ने, साड़ के स्वाह। इहदा मतलब उन्हां कोल वो सिस्टम भी घट पै गया। उन्हां कोलों लाशां बिजली नाल भी साड़ियां नहीं गईयां, समुंदर विच रोड़नियां पईयां, इन्नियां मौतां हो गईयां। रब दा शुकराना करिए, उन्हें जान बख्श दित्ती है। होर की चाहिदा? ये घाटे वाधे फिर पूरे हो जाणगे। रब दा शुक्र करो, उन्हें तंदुरुस्ती दित्ती है, जान बख्श दित्ती है। साध संगत ये गुरु दे आसा। वो पिंड वाले इकट्ठे होके महापुरुषों नूं कहंदे, बाबा जी तुसी तां भगती वाले हो, रब तुहाडी मनदा है, रब वाले हो, पिंड दा भला कर जाओ। इत्थे नित मौतां होण लग पईयां, 2-2 हुंदियां ने। ये प्लेग दी बीमारी फैल गई। साध संगत साधु दयावान हुंदा है, ओनूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं, कोई ओनूं मत्था टेकदा जां नहीं टेकदा। साधु नूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं कि किहड़ा पिंड उन्हां दा सत्कार करदा, उहदा भला करना नहीं। साधु तां रब वर्गे हुंदे। जदों पिंड दी पंचायत ने बेनती कीती तां ओह महापुरुष बोले, संत बाबा राम लाल जी कहंदे चलो लंबड़दार जी पिंड चलदे। चले गए। छोटा जिहा पिंड सी, अज भी छोटा ही है, 700 वोट है हुण। तां जदों ओह पिंड विच गए, कहंदे लंबड़दारा ढंडोरा पिंड दे पिंड विच उच्ची आवाज में गली गली घूम के कह दे, जिन्नी देर द्वारा आवाजा ना दईए, कोई घरों बाहर ना निकले, आपो अपने दरवाजे बंद कर लो। सारे पिंड विच कह दे, घर तो बाहर ना कोई निकले, जिन्नी देर असी पिंड विच द्वारा आवाजा ना दईए। सारी गली गली घूम के पिंड च कहता, भाई महापुरुषों का हुक्म है, कोई घरों बाहर ना निकले, कोई घरों बाहर ना निकले, अपने घरों के दरवाजे बंद रखो। आवाज देती तो फिर वो महापुरुष कहते, लंबड़दारा 2 मुंडे नाल लै ला, 2 झाड़ू लै लो। सारी गली विच पिंड विच गली गली झाड़ू लाया, कूड़ा इकट्ठा करते रहे, चुक के महापुरुष बोरी च पाउंदे रहे। कूड़ा इकट्ठा करते रहे, गली पूरी सुंबर नहीं बोरी विच पा ली। सारा कूड़ा इकट्ठा करके
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਰੀ ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ तेरे पिंड विच एक माई ने वचन नहीं मन्निया उन्हें दरवाजा खोल के गली विच बाहर वेखण आ गई की गल है दरवाजे कल्ले बंद कराए वेखा तां सही महापुरुष की करदे वेखा तां सही संत किहड़ा मंत्र पढ़दे वो दरवाजा खोल के बाहर आ गई है फलानी गली कहंदे उन्हें वचन नहीं मन्निया बाकी तेरे पिंड विच प्लेग नाल कोई मौत नहीं होएगी पर जिहड़ी माई ने वचन तोड़िया ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਾ नहीं सकता। अगले दिन वो माई की मौत हुई पूरे पिंड विच प्लेग की बीमारी उस तो बाद खत्म हो गई। कूड़ा सुंबर के साधु ले साध संगत साधु का वचन ही चलता जाकर कहा दरगाह चले साधु का वचन रब की दरगाह तक चलता पर शर्त एक है साधु का वचन मनना पैंदा है। ताइयों महाराज ने बाणी अंदर वचन कहे जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए संतो सागर पार उतरिए जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए जे कोई साधु का वचन कमा ले साध संगत तो तर जांदा साधु दे हथ विच इन्नी वड्डी पावर है पर वो लोगों को दावे नहीं करते। आ हुण कोरोना विच बड़े लोगों ने फेसबुक ते पाया कहंदे हुण कित्थे संत चले गए हुण भाई साधु संत लोग के बह गए हुण कोई करामात दिखाउण। साधु रब दा शरीक नहीं है वो किसी तमाशबीन मदारी की तरह चौंक में तमाशा नहीं करता कि मेरे को करामात है। साध संगत तो रब दा शरीक नहीं बनता। हाँ वो अपनी मर्जी का खुद मालक है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਮौज ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਖੈਰ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਰੱਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तेरे भागां च औलाद दा सुख नहीं। इन्नी गल कही ओ माई दा मन टुट गया, रोन लग पई। एक सेवादार ने हलूणा दे के कहा बीबी पिछा होके बैठो, दूजियां भी मत्था टेकण। रोंदियां रोंदियां पिछे बैठ गई, अपने मन नाल गल्लां करदी है। कर्म जलीए सुलखणीए, जे तेरे भागां च लिखिया ही नहीं रब ने तैनूं कौन दे सकदा है। जे तेरे कर्मां विच है ही नहीं तेरे कर्म कौन बदल सकदा है। इत्थे उम्मीद सी, इत्थों भी गुरु ने जवाब देता। रोंदी होई अपने मन नूं कोसदी, उठ के ओ चब्बे दी सुलखणी उठ के तुर पई। जदों रोंदियां रोंदियां गुरु दरबार तो बाहर गई ना, ते पिछों एक बुजुर्ग ने आवाज मार के कहा बेटा रुक जाओ। ओ माई रुक गई। वेखियो हुण कर्म किदां बदलदे। पहला गुरु ने जवाब दिता तेरे भागां विच औलाद नहीं। हुण जदों रोंदियां उठ के चली गई, पिछों किसी ने आवाज मार के कहा धीए रुक जा। ओ माई रुक गई, पिछा परत के वेख्या कौन है। कहंदे ने चिट्टा शमशदड़, चिट्टी पग, बिरद शरीर, अखां दे आ भंबड़ियां, बाल भी चिट्टे। वो बुजुर्ग पता कौन है, जिन्हें आवाज मार के कहा धीए रुक जा। ये गुरु नानक दा वो सिख है जिन्हों ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब कहते। धन गुरु नानक साहब महाराज तो लेकर 6वें पातशाह तक सिक्खी कमाई। 12 साल की उम्र में सिक्खी धारण की। 125 साल बाबे बुढ़े की उम्र हुई।
113 साल गुरु नानक दे घर दी सिੱਖੀ कमाई। जदों बाबे बुढ़े ने कहा ना धीए रुक जा, माई ने वेख्या ये बजुर्ग कौन, हाथ जोड़ के कहा बाबा की कहना है। ओ बाबा बुढ़ा साहब बोले धीए रो क्यों रही, पुत मैं अज तक गुरु नानक दे घरों कोई रोंदा जांदा नहीं वेख्या। लोग रोंदे आउंदे ने, मैं जांदे खुश होंदे जांदे वेखे ने, तू उदास ते रो क्यों रही है। ओ माई ने कहा बाबा रोमा ना तां होर की करां, मैनू आस सी जेदी अरदास कित्यों ना पूरी होवे ओदी गुरु नानक दे घरों आस पूरी हुंदी है। अज तां मैनू गुरु हरगोबिंद साहिब ने जवाब देता, तेरे भागां विच औलाद नहीं, मैनू गुरु नानक दे घरों जवाब मिल गया, रोमा ना तां होर की करां। बाबे बुढ़े जी ने पता की क्या, धन बाबा बुढ़ा साहब बोले, कहंदे धीए ऐस बुढ़े वल वेख, मैनू 100 साल तो उपर हो गया गुरु नानक दे घर विच रहिंदे, 100 साल तो उपर हो गई उम्र मैनू गुरु नानक दे घर विच सेवा करदियां। धीए अज तक मैं उदास ते निराश जांदा कोई नहीं वेख्या, फिर की हो गया, तैनू जवाब देता। इन्ना ही कहा कि तेरे भागां विच औलाद नहीं, इन्ना ही कहा रब ने तेरे कर्मां च औलाद नहीं लिखी। कहंदे धीए फिर की हो गया, जा दोबारा फिर अरदास कर, जे तैनू हुण गुरु हरगोबिंद साहिब कहण ना कि तेरे भागां विच औलाद नहीं लिखी, चित जोड़ के कह दें दाता नहीं लिखिया हुण लिख दिओ, तुसीं लिखना है। पुत जिहदे कोलों उदास हो के चली है वो गुरु भागां विच लिखण दी समर्था रखदा है। जेड़े गुरु कोलों उदास होकर चली है वो गुरु कर्म ते लेख बदल दी समर्था रखदा है। जा अरदास कर, वो गुरु तेरे लेख बदल के रखदा है। साथ संगत अंदर विश्वास जाग गया, माई वापस आ गई, आगे 6वें पातशाह दे चरनां च अरदास करनी सी। देखिया ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जा चुके, शामां दा फिर दीवान लगा, पातशाह दे दरबार विच फिर आ गई, हाथ जोड़ के पल्ला अड के कहंदी महाराज औलाद बख्शो, निफल जंदी नूं कोई फल लाओ। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने वेख्या ते वेख के कहंदे माई तैनू ते सवेरे जवाब दिता है, तेरे भागां विच औलाद नहीं लिखी, तेरे कर्मां विच रब ने औलाद नहीं लिखी, तैनू ते सवेरे जवाब दिता है। ओ माई ने अखां नहीं खोलियां, अंदरों मन विराग नाल भरिया, रो पई ते रो के कहंदी सच्चे पातशाह नहीं लिखिया फिर हुण लिख दिओ, तुसीं लिखना है। महाराज तुहाडे हत्थ है, जे पहला नहीं लिखिया हुण लिख दिओ। 6वें पातशाह चुप कर, सारी संगत रुक गई, मत्था टेकण वालियां नूं रोक दिता गया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज एकदम चुप करके बैठ गए। भाई संतोख सिंह लिखदे 24 मिनट तो वध गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज चुप बैठे रहे, संगत नूं मत्था टेकण तो रोक दिता गया। 6वें पातशाह एकदम खामोश अखां बंद करके बह गए। फिर 24 मिनटां एक घड़ी तो बाद बोले हस के, पातशाह फिर एक घड़ी तब तुश न रहे तब श्री मुख ते हर गोबिंद कहे एक घड़ी 24 मिनटां बाद 6वें पातशाह बोले, कहंदे माई तैनू किसे जागे हुए ने जगा दिता है, तैनू किसे राह पे ने रस्ते पा दिता है। ये विश्वास का रस्ता सीधा रब दे घर जांदा है। इन्ने विश्वास नाल कोई मंगे रब नूं कर्म बदलने पैंदे ने। जा तेरे कर्म बदल दिते, तेरे भागां विच एक भी नहीं सी लिखिया, हुण गुरु नानक दे घरों तेरे भागां च 7 पुत्र लिख दिते। पातशाह ने कहा हुण 7 लिखे गए, एक नहीं, हुण तेरे भागां च 7 लिखे गए। रब दे घरों कर्म बदल गए ने। ये विश्वास वाला रस्ता सीधा रब दे घर जांदा है। ताइयों पातशाह ने बाणी अंदर कहा, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, जिहदे मन च विश्वास आ जाए, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भाई जिन्हों विश्वास आ जाए रब नूं प्रगट होना पैंदा, जे विश्वास ना आवे फिर पातशाह कहंदे अपनी प्रतीत आप ही खोवे। जिन्हों सुखमनी साहब याद है पढ़ो, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बोर उसका विश्वास ना होवे। भाई जिन्हों प्रतीत ना आवे
रब भी उहदा विश्वास नहीं करता। इसलिए साध संगत आपां गुरु ते विश्वास भरोसा रखिए। जिन्हां दी याद मना रहे हो साध संगत, वो रब ते विश्वास रख के रब दे नाम दी कमाई करदे। जदों उन्हां कोल कमाई रब दी इकट्ठी हो जाती, जिस तरह फुल विच खुशबू नक्को नक भर जाए, फुल नूं खिड़ना पैंदा है, खुशबू मंगनी नहीं पैंदी, अपने आप लोकां नूं खुशबू दिंदा है। इदां जदों जपण वाले साधु दे अंदर नाम दा रस भगती दी कमाई भर जाती है, उत्तों मंगना नहीं पैंदा, वो दुनिया दा आपे भला करन लग पैंदा। तां ओहदा जन्म संसार विच साडे वांग नहीं, वो परोपकार वास्ते हुंदा है। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी धान दे भगती लाए न, हर स्यों लैन मिलाए। साध संगत वो धरती ते परोपकार बनन लग पैंदे। उन्हां कोल खजाना वध जांदा है, जिवें खिड़िया होया फुल खुशबू आपे ही दिंदा है। इदां साध संगत जिन्हां च भगती दा रस भर जाए, वो दुनिया दा भला करन लग पैंदे। फिर उन्हां दी कमाई इन्नी वध जांदी है, उन्हां दे जाण तो बाद भी दुनिया वडियाई करदी। एक पंक्ति ध्यान नाल सुणियो, किसे दे कोल पैसे जेब विच रख लईए ना आपां, कमाई पता किवें वधदी है। आपां भी नाम जपदे, बाणी पढ़दे, गुरुद्वारे आउंदे, साडी कमाई क्यों नहीं जुड़दी? साडे कोल इन्नी पावर क्यों नहीं कि आपां कोई बचन कह दईए पूरा हो जाए? साधु कोल इन्नी कमाई क्यों जुड़ जाती है? ਉਹਦਾ फर्क बहुत ਵੱਡਾ। साध संगत असीं तुहाडी चरण धूड़ है, जिन्नी संगत तुसीं बहुत भागां वाले प्यार वाले बैठे हो। ये मैं एवें सख्ती नाल नहीं पहलां कह वे दूर बह जाओ बच्चों नूं बाहर लैके, एक जरूरी है, नहीं तो तुसीं साडे नालों वड्डे हो, साडा कोई अधिकार नहीं है संगत नूं इस तरह कहण वास्ते। संगत वड्डे दर्जे दी, पर कथा कीर्तन किवें होना है, सत्संगत किवें हुंदी है, उहदे वास्ते बेनती करनी पैंदी। साधु कोल कमाई किवें जुड़दी है? संसार विच याद रखियो, जेड़े पैसे जेब च रख लईए ना, वो चल जांदे। भावें 10,000 जेब च पा के निकलो, वो 10 दिनां विच मुक ही जाना है। थोड़ा तेल पवा लिया, मोबाइल च पैसे पवा लिया, घर नूं सौदे ले आंदे। 10,000 20,000 परस विच पा लो, वो 10-20 दिनां विच मुक जांदा है। ते जेड़े पैसे थोड़े जे इकट्ठे करके बैंक विच रख दिओ, ओहदे उत्ते रोज ब्याज लगन लग पैंदा। ऐदां ही हुंदा है। जेड़े पैसे बैंक च जमा कराते, उत्ते 2-4 रुपये रोज जुड़न लग पैणे। जेड़ी FDR कराती, ओहदे उत्ते पैसे जमा होण लग पैंदे ने, जेब च रखे पैसे चल जांदे ने। इहो चीज साध संगत धर्म विच है। आपां सेवा करदे, बाणी पढ़दे, पुण्य दान करदे, पर आपां लोकां नूं दस्सण लग पैंदे, हंकार करन लग पैंदे, वो नाल दी नाल चुगिया जांदा है। मैं बोरी खंड दी दित्ती लंगर च, ध्यान उन्नी देर उधर ही रहिंदा जिन्नी देर स्टेज तो ना बोलिया जाए। लोकां विच तां बोल दोगे, पर गुरु दे घर विच तुहाडी जीरो है, लिखिया नहीं गया उत्थे। बिल्कुल आ 5 टीन घिओ दे साडे वल्लों जदों बोलोगे, वो बंदा सुनने वास्ते तैयार है। मेरा नहीं बोलिया, साडा 5500 नहीं बोलिया, मेरा 11,000 बोलिया नहीं। जे तुसी सुनना चाहते हो बोल दिता जाएगा, पर तुहाडा बोलिया लोकी तां सुन लैणगे। एक चेते रखियो, गुरु दे रजिस्टर विचों कट हो जाना। साधु की करदा है? वो सेवा सिमरन नाम कमाई भगती करदा है, अपने कोल नहीं रखदा, नाल दी नाल जमा कराउंदा है। अपने कोल कमाई पुण्य दान सेवा सिमरन साधु अपने कोल नहीं रखदा, नाल दी नाल गुरु नानक नूं जमा करा दिंदा है। इन्ना क जमा हो जांदा है, जिद्दण शरीर करके वो साधु चले जांदे ने, सदियां तक उन्हां दी जुड़ी हुई कमाई लोग खांदे रहिंदे ने, मुकदी नहीं है। जिन्हां दी जगह ते बैठे हो ना सत्कारयोग बाबा लाल दास जी, साध संगत ते कमाई करके रब नूं जमा कराउंदे रहे, अपने कोल नहीं रखे। जदों जप जप के कमाई भगती रब नूं जमा कराती, वो इन्नी क जमा हो गई, संसार तो चले गए। दुनिया सदियां तक उन्हां दी वरसी मनाउंदी रहिंदी है। आ हुण एक बेनती समझो, मैं अमेरिका विच ओ बंदे भी वेखे ने जिन्हां कोल 5-5 हज़ार एकड़ जमीन है। अमेरिका विच इत्थे 50 किले जमीन होवे ना, बंदे दी तौर बदल जाती है। 5-5 हज़ार एकड़ जमीन
जहाज़ां नाल हैलीकाप्टर नाल दवाइयां छिड़कदे। मैं उन्हां कोल कैलीफोर्निया जाके आया, 1910 के बजुर्ग गए हुए उत्थे 5-5 हज़ार एकड़ जमीन जोड़ लई है। पर एक चीज सुनियो, जिन्हां पड़दादियां ने दादियां ने बनाई है ना जमीन, मैं उन्हां दियां कोठियां घरां च भी गया, पोते पड़पोते अगे उन्हां दी पीढ़ी चल रही है, पर जमीनां बनाउण वाले पड़दादियां दियां फोटोआं घर विच नहीं है। मैं नहीं उन्हां दा कोई पड़दादा वेख्या। जे किते फोटो है वो किते पिछले पिछले कमरे च एल्बम च रखी है, किसे पड़दादे दी जमीन बनाउण वाले दी फोटो नहीं। वो सज्जणों 5-5 हज़ार एकड़ जमीन बनाउण वालियां दियां फोटोआं भी नहीं रहियां। बरसियां तां दूर दी गल है, जिन्हां दी याद मना रहे हो उन्हां कोल जमीन ना भी होवे। पता क्यों बरसी मना रहे हो? क्योंकि भगती दी कमाई करके गुरु नूं जमा करा गए। ये भगती वालियां दी याद रहिंदी है, नाम जपण वालियां दी धरती ते याद रहिंदी है, जमीनां वालियां दी नहीं। वो तां जदों पड़दादे 3 पीढ़ियां लंघ जाण फोटोआं भी जांदियां लगदियां। इसलिए साध संगत जपण वाले साधु उन्हां दी कमाई धरती ते क्यों रहिंदी है? वो गुरु नूं जमा करा देंदे। किवें जमा कराउंदे ने? नाम जपणगे, परोपकार करनगे, भगती पुण्य दान करनगे ते नाल रोज हथ जोड़ के कहणगे शरीर भी तेरा रब्बा, जिंद भी तेरी है, ए शरीर नाल कीती होई भगती ते कर्म परोपकार भी तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। साधु रोज कहंदा ये इंडिविजुअल भगती वाले नूं अरदास करनी चाहिए है अपने तौर पर, पर इनू पंथक तौर पर आपां शामिल कीता है। हर रोज जपण वाला कवे अपने गुरु नूं हथ जोड़ के तुद आगे अरदास हमारी, आखो तुद आगे अरदास हमारी। जिन्हें थोड़ी भी सेवा की वो भी कवे, जिन्हें बहुती की वो भी कवे, जिन्हें खंड की बोरी कोई टीन घ्यो दा दिता है वो भी कवे गुरु नूं कि तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जिंद भी तेरी, पिंड दा अर्थ शरीर, कहते महाराज शरीर पिंडा भी तेरा है, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ ना जाने मेरा। जदों क्या वड्याई तेरी है, वो वड्याई जमा हो गई। क्या ना तेरी है, जमा हो गई। आपां लई नहीं वड्याई, इसलिए वड्याई लैनी नहीं, गुरु कोल जमा करा दिओ। जाओ तुहाडी पीढ़ी दर पीढ़ी घर परिवार में सन्मान हुंदा रहे। 3-3 पीढ़ियां फिर लोग याद रखते साडा पड़दादा बहुत चंगा सी, साडा दादा बहुत चंगा सी। क्यों? भाई उहने कमाई जमा कराई है। इसलिए आ जिहड़े साधु ने ये तां इन्नी कमाई करके जमा करा जांदे ने, सदियां तक दुनिया उन्हां दी वड्याई करदी रहिंदी है, क्योंकि वो वड्याइयां कोल नहीं रखदे। दुनिया दी वड्याई लैके नाल ही जमा करा देंदे ने। लोग मत्था टेकदे ने पर साधु नाल दी नाल जमा करा दे। समा मेरा समाप्त है। बाबा ईश्वर सिंह जी साध संगत उन्होंने ना संगत ने सत्कार कर जाना, मत्था टेक जाना। उन्हें रोज रात को सचखंड जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का सुख आसन है वो कमरे में जाना, 1.5 2 घंटे सचखंड च रहना। सेवादार ने एक दिन वेख लिया, खबरिया भगती करते की करते। जदों ने वेख्या तो महापुरुष भगती नहीं कर रहे, 1.5 घंटा खलो के 20 मिनट अरदास करनी, फिर मत्था टेकना, 20 मिनट सिर ना चुकना, फिर अरदास करनी, फिर मत्था टेकना। उन्हें अगले दिन पूछ लिया, कह संत जी मैं तो क्या भगती करते, तुसी तो 1.5 घंटा अरदासा ही करते रहंदे हो, मत्था ही टेकते रहंदे हो, क्यों? बाबा ईश्वर सिंह जी कहते भाई गल पता की है, वो दिने आ बाणा वेख के ना सानू लोग संत समझते ने, सानू लोग गुरु दा चक्कर समझते ने। कई बार लोग मत्था टेक जाते ने, असी राती सौण तो पहला सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब नूं दे के सोईंदा है। हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज, आ संगत दा टेकिया मत्था कीती अरदास सब कुछ तुहाडा है, विच ईश्वर सिंह कुछ भी नहीं। जिन्नी वड्याई हुई है दाता ये तैनू दिती है, अपने कोल नहीं रखना। साध संगत
संत पता किवें काम करदा है, जिवें कोई करिंदा काम करदा है। करिंदा समझदे हो, किसी ने ड्राइवर रखिया होवे, वो सारा दिन सैकड़े मील गड्डी चलाउंदा है, शामां नूं लिया के विहड़े च मालक दे खड़ी कर दिंदा है। मालक नूं कहंदा टुट भज तेरी है, मैं ते भाई चलाई है। इदां साधु जिउंदा है, वो सारा कोई दुनिया विच विचरदा है। जे कोई वडियाई दवे नाल दी नाल गुरु नूं जमा करा के कहंदा है, तुद आगे अरदास हमारी, पढ़ो जियो पिंड सब, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने। एक बार सारे गज के कहो, कोई नाओ ना जाने मेरा, कोई नाओ ना जाने, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने। सारे प्यार विच कहो, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना। हुण गज के कहो, कोई नाओ ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने, कहो नानक सब, कोई नाओ ना जाने, कहो नानक सब, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक कोई नाओ ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने, कहो नानक। गज के कोई नाओ ना, कहो नानक सब तेरी वडे। सतगुरु कृपा करन, आपां जिन्हां दी वडियाई करन वास्ते बैठे, ये वडियाई करदियां करदियां अपना भी जीवन जन्म सफल होवे, ये दिन मनाए हुए सफल होण। साध संगत तां आपां नूं लाहिया, होर लंगर प्रशादा तुसीं घर भी रोज छकदे हो, शामी भी छकना, कल नूं भी अपने घर छकना, परसों भी छकना। कहण तो भाव इत्थे आपां अज दा दिन किसी होर मकसद वास्ते, उहदे वास्ते ये जरूरी है कि इदां एकाग्रता नाल बैठिया करो। हुण देखो कितना आनंद आया, तुसीं प्यार नाल बैठे। जे रौला पई जांदा ना मैनूं कथा करन दा आनंद आउणा सी, ना तुहानूं प्रबंधकां नूं भी वो फिर आनंद नहीं आउंदा इन्ना प्रबंध, क्योंकि एक छोटा जिहा फंक्शन करना होवे एक महीना लग जांदा तैयारी वास्ते। 15-15 दिन विचारे जागते ने, तैयारी करते हैं, उगराही करते, ते आपां फिर वो जिहड़ा मेन दिन आवे। हुण तुसीं प्यार वाले बैठे, विआह वास्ते 6-6 महीने तैयारी हुंदी, जे विआह वाले दिन रौला पै जाए सारा ही स्वाद खराब। इदां भाई ये भी कारज है, इत्थे आप जिम्मेवारी समझो। जिन्हां भैणां कोल बच्चे हुंदे हो आप पिछे प्यार नाल बैठिया करो, बच्चिआं नूं तुसीं बिठाउणा। ये थोड़ी हुण गुरुद्वारे लिया के छड़ दिते, छको लंगर पानी रौला पवे। एक थां ते असीं बार-बार कही गए बीबीओ बच्चिआं नूं संभाल के बैठो, बाद च कमाई कहनी बाबा जी गुरुद्वारे भी असीं संभालीए, हुण हद हो गई, हुण गुरुद्वारे प्रबंधकां ने संभालणे। कहते बाबा जी इत्थे भी असीं संभालीए। साध संगत ये बच्चे तुहाडे ने, आपां किद्दां दातां मंगदे, महाराज सानू दात दिओ, औलाद दिओ। ये जिहड़ियां दातां मिलियां उहनूं दात नूं फिर आपां गुरु दर उत्ते शुकराना करिए, साम के बैठिए। ये नीवें बच्चे खुले छड़ दिते जो मर्जी हलतां कर, नहीं, ये तुहाडी जिम्मेवारी है। जदों भी अगे तो संगत विच आउणा अपने बच्चों नाल बिठाओ। किन्नियां बीबियां भैणां विच प्यार वालियां बैठियां अपने बच्चों नूं गोदियां च बिठाओ,
ये उन्होंने जिम्मेवारी। अपने बच्चों नूं आप बिठाना सिखाओ, फिर ये जीवन जन्म ये समा जिहड़ा सफल हुंदा है। एक बेनती तुहानूं होर है, पिंडां 'च नवीं बीमारी फैली हुई है। बरसियां भी मनाउने, आपां गुरपुरब भी मनाउने, प्रभात फेरियां भी कढ़दे, नगर कीर्तन भी कढ़दे, पर साध संगत नवीं बीमारी फैली हुई है। सानू गुरु ते विश्वास ते प्यार घटदा जा रहा है। नवीं जे बीमारी चल पई, हथ विच कड़ा नहीं पाउंदे। नवीं बीमारी चली है, काला धागा वो पैरां 'च जरूर पाउण लग पे, बीबियां भी पाउण लग पईयां ते बंदे भी पाउण लग पए। ये काले कूले धागियां तो बचो, किसी ने कोई धागा नहीं बनना। हथ विच कड़ा पाओ, घर विच बाणी पढ़ो, गुरु ते भरोसा रखो, फिर साध संगत गुरु तुहाडे नाल वरतदा है। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं भूते। तां वरतदा जे आपां गुरु ते भरोसा रखीए। अपने बच्चों के भी हत्थां 'च कड़े पाओ, अपने हत्थां में भी कड़ा पा के रखो। साध संगत किसी तरह का कोई धागा या कोई तवीत नहीं पाउणा, अपने गुरु ते विश्वास रखो। ये नवीं बीमारी पैरों में धागियां वाली चली है। ये पंजाब च असीं हुण लगातार प्रचार किया, हुण कई लोग पिंडां 'च घटन लग पे। वो काले जे धागे नवीं बीमारी फैशन है। एक लड़की ते बन्निया सी पैर उत्ते, असीं उन्हां दे घर गए तो मैं वो वेख्या, मैं कहा बीमार रहिंदी कुड़ी? कहंदे नहीं भाई साहब। मैं फिर धागा काहदे लई बन्निया? चुप कर गए, कहंदे उदां ही बन्निया। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का बोल पिया, कॉलेज च पढ़दा हो, BA फर्स्ट ईयर, कहंदा बाबा जी, कहंदा मेरे पैर ते भी बन्निया होया, कहंदा मम्मी ने लिया के बन्ने, मम्मी देखिया। मैं कहा भैन जी कित्थों लिआंदे धागे? कहंदी उदां ही बन्ने भाई साहब, नज़र ना लग जाए बच्चों नूं। हद हो गई गल वाली। तुहानूं गुरु ते विश्वास नहीं, हथ विच पहने हुए कड़े ते कोई भरोसा नहीं, काले धागे ते विश्वास में नजर ना लग जाए। मैं वो कुड़ी नूं कोल सद्दिया, लड़की नूं, मैं कहा पुत तू की बनना पढ़ ले? कहंदी अंकल जी मैं तो डॉक्टर बन। मैं तेनू तो डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई, तू तो बीमार रहना। वो लड़की उदास हो गई। मैं उन्होंने कहा पुत तू बीमार पता क्यों रहना? कहनी अंकल क्यों? मैं कहा जिहड़ा तेरे पैर उत्ते काला धागा बन दिता ना तेरी मां ने, उत्ते काला धागा साइकोलॉजी अफेक्ट है, ये मानसिक रोग है, इन्हें तेनू कमजोर करना है। जिदन धागा गल के टुट गया तो ऐ तेनू लगना हाय सिर दुखदा, खरे उदन दा दुखदा जिदन दा धागा टुटे। ते जे तू डॉक्टर बन भी गई, पुत तेरे पैर का धागा किते गल के टुट गया, तू किसी रोगी का की इलाज करना है? पहला खुद भजेगी, हाय मेरा तो धागा ही टुट गया, पता नहीं मेरी लत्त दुखन लग पई, सिर दुखन लग, तू खुद बीमार हो जाना, रोगी का की इलाज करना। साध संगत तो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली है, तो 10th में पढ़ती सी, उस वक्त भज के गई किचन विचों छोटी जी कंची लियानी, उन्हें लिया के पहला अपने पैर का धागा वड्डिया, फिर उन्हें अपना भरा जिहड़ा फर्स्ट ईयर च पढ़दा BA फर्स्ट ईयर, ओहदे पैर का धागा वड्डिया। साध संगत दोवां भैणां भरावां ने अपने पैर चों धागे वड़ दिते। तुहानूं भी हथ जोड़ के बेनती है भैणां नूं वीरां नूं, जे किसी ने पैरां विच काले धागे पाए आ, किरपा करके वड़ दिओ, धागिआं तों मुक्त होण, लुकोवो ना, घर जाके वड़ दिओ। कोई इत्थे कंची नहीं मिलनी, घर जाके वड़ दिओ जरूर जिन्हां ने धागे पाए। हथ विच कड़ा पाओ, गुरु की बाणी पढ़ो, गुरु ते विश्वास रखो, फिर होणगे लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू।